And a story that has generated a lot of controversy. Aligarh Muslim University is in controversy yet again, this time around over its lunch menu. A notice has been issued to students announcing that beef biryani is going to be served for lunch at Sir Shah Suleiman Hall at the Aligarh Muslim University. Times Now has accessed a copy of this notice that was issued yesterday, and here is what it says. I quote, "This Sunday's lunch menu has been modified based on popular demand. Instead of chicken biryani, we will be serving beef biryani. This change is in response to numerous requests from our resident members. We hope you enjoy the new addition to our menu." This notice has two names, Mohammad Fayazullah and Muzassim Azmat Bhati, mentioned as senior members of the dining hall. The notice obviously created a stir at Aligarh Muslim University, with students opposing it. As soon as this information went viral, the AMU administration backtracked and said that it was a case of a typing error. देखिए, ये जानकारी में आया था कि सुलेमान हॉल जो एमयू का एक रेजिडेंशियल हॉल है, यहाँ पर एक नोटिस इशू किया गया था फूड और मेन्यू से रिलेटेड। और दो सीनियर फूड कहा जाता है डाइनिंग हॉल में, ये स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ पर डेजिग्नेशन होती है। तो उन दोनों की तरफ से ये नोटिस था। जब इस नोटिस को देखा गया, उस नोटिस में टाइपिंग एरर था, तो फौरन इस नोटिस को वापस ले लिया गया। दूसरी बात यह है कि इस नोटिस में किसी के साइन नहीं थे, तो हो सकता है कि इस नोटिस की अथॉरिटी का भी अभी कुछ पता नहीं है। नोटिस में जो टाइपिंग एरर है वो उससे साफ दर्शाता है कि ये नोटिस जो है ये सही तरीके से नहीं ड्राफ्ट था, तो इसको विड्रॉ कर लिया। नोटिस विड्रॉ होने का मतलब ये है कि इस नोटिस की कोई वैधता नहीं है। और हमने दोनों सीनियर, हमारी जो प्रोवोस्ट साहब हैं, उन्होंने दोनों सीनियर फूड जो स्टूडेंट्स हैं उनको शो कॉज नोटिस भी इशू किया है, ताकि ये मामले को हम लोग गंभीरता से लें। और हमारे यहाँ एमयू में कानून का पूर्ण तरह से पालन किया जाता है। जो लॉ हमें कहता है कि जो चीजें हम लोग खा सकते हैं और जो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जो चीजें करते हैं, खाते हैं, वो हमेशा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। Does that explanation sound plausible to you? Because the notice says beef biryani is as many words. The AMU administration calls it a typing error. What exactly is the typing error there? It's not a spelling mistake, it's not a grammatical mistake, there is no problem with the syntax. Look at the notice on your screens. It reads, "Hope you enjoy your new menu." Is that also a typo? Later on, the administration claims it was unintentional and that notice was withdrawn, and there was no official signature on the notice either. After this outrage, an FIR has been registered against 3 members of the administration, Muzazzim Ahmad Bhati, Mohammad Fayazullah, who was named in the notice, and another member, FR Gohar. This FIR has been registered under Section 302 for deliberate intent to hurt religious feelings, Section 270 that holds authorities accountable for failure to act, and Section 353 for publishing false statements with malicious intent. Politics now has also broken out over this change of menu. Many have found it unpalatable. AMU meanwhile claims that it was an unintentional error. The BJP is calling it conspiracy. किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह की साजिश, ये षड्यंत्र घोर निंदनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी प्रत्येक पहलू की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर देश के सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे को खराब करने में लगे हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसी नकारात्मक विषणकारी शक्तियों को हवा देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर मुद्दे पर राजनीति करना समाजवादी पार्टी की आदत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ है, पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है, मामला दर्ज किया है, उसकी जांच कर रहे हैं। यदि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह का काम किया गया है तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस मामले में सफाई भी आई है, लेकिन पुलिस अपनी जांच के बाद ही इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। The Samajwadi Party, however, is questioning the opposition to beef on the plate controversy. The party leaders say that if it is not prohibited, then what is wrong? देखिए, हिंदुस्तान में एक सर्वे के अनुसार 74% लोग वो मांसाहारी हैं, और जो भैंस का गोश्त कहलाता है, जिसको बीफ कहते हैं, उसको खाने पे हिंदुस्तान में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है।
उसको उसको क्या खाना है, क्या पीना है, वो देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो समाजवादी पार्टी समझती कि कानून के अनुसार नहीं है, उससे क्या कानून व्यवस्था का विषय था ये समझ के बाहर है। किसमें खाना में कहा में बीफ खाने से क्या बात, कोई किसी को बीफ खाना चाहता है, कोई पोर्क खाना चाहता है, तो अपना जिम्मेदारी है, आप अपना पसंद है, बाहर में खा लो। लेकिन एक कॉमन किचन में जहां में हिंदू स्टूडेंट भी हो, क्रिस्चियन भी हो, बौद्ध भी हो, जैन भी, वहां में बीफ बांटना, बीफ खाना मेरा ख्याल से ये कोई रिलीजियस सोशल एंगल में ये ठीक नहीं है, इस नहीं होना चाहिए। सब जो खाता है वो खाना चाहिए। अगर किसी को बीफ खाना है खा लो, कोई अलग बात है, लेकिन कॉमन किचन में नहीं, अलग से खा लो। मुझे ये खाना है और इसको लेके बराबर होना चाहिए, इसको लेके पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए वोटर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।